So, hello everyone, and welcome to the Walking Shepherds another session of every regular Saturday meets. And today we have a very interesting topic. The topic is we are talking about the regional poetries and regional poets. So, the poet that I will be talking today is Narsi Mehta from Gujarat. People who are aware about him always listen to him in the form of bhajans. Let it be many bhajans like Jal Kamal, or there are many others as well. Like one of them is Bholi Re Bharwar. So he generally writes bhajans that are dedicated to Lord Krishna, and in his bhajans, he generally describes Krishna in the most loving way. And most interestingly, he narrates his tales by inculcating the values of it. जनरली लोग जब उनको सुनते हैं तो कितना प्यारा भजन है, कितना अच्छा आवाज है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ है. ट्रू. All thanks to some famous singers like Praful Dave and many others. But when it comes to his poetries, they have a real essence of values, and devotion has no, it has a pinch of devotion in it. So now when it comes to the one that I'm going to discuss today, is it's named as Jal Kamal Chandi Jane Bara. So a pretext to this is this entire bhajan is basically a story of Lord Krishna jumping into the Yamuna river to kill Kalya Nag. He was a demon who terrorized the people of Mathura, and now he wanted to get rid of him. And it is a conversation between like little Krishna and the wife of Kalya Nag. Okay. And later on, it goes ahead, and we will discuss stanza by stanza, one by one. Okay, so it starts with Chal Kamal Chandi Jane Bara, स्वामी અમારો જાગસે તને મારસે મને બાળ હત્યા लागसे. So in this lines it means कि वो चाइल्ड जल्दी से ये जो लोटस से भरा हुआ फील्ड है, ये जो पूरा लेक है, इसको छोड़ के जल्दी से यहाँ से चले जाओ. यहाँ क्यों आए हो? This is the Nagin, that is the wife of Kalya Nag actually talking to Krishna, telling him, why are you over here? यहाँ क्यों आए हो? अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पे अभी जाग गए तो तुम्हें मार डालेंगे, और उसका जो हत्या का पाप है एक बच्चे को मारने का, वो हमारे सर पे आएगा. तो यहाँ से जल्दी से चले जाओ. In the second stanza, the same Nagin says, कहे रे बालक तू मार्ग भूलियो કે તારા વીર્યે વેળાવ્યો નિશ્ચય તારો કાળજ ખૂટ્યો અહીંયા તે सीधे આવ્યો. which means के टेल मी बच्चे बता मुझे कि कहीं तुम अपना रास्ता भूल गए हो, या कहीं आपके जो दुश्मन है उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे आपको गलत राह दिखा दिया. शायद से आपका जो रास्ता शायद ऐसा हुआ है कि आपका जो काल है, आपका जो समय है वो खत्म हो गया है, इसलिए आप यहाँ आए हो सीधा. सो इफ यू लुक इनटू दिस लाइंस, स्टार्ट में ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कंसर्न that the wife of Kalya Nag is concerned for the little Krishna. But if we again carefully see, यहाँ पे it's not more of a concern, it's more of arrogance. Hmm. अगर आप देखो यहाँ पे कि वो बोल रहा है, वो ऐसे पहले ही कृष्ण जी को गिल्ट ट्रिप में डालना चाहते हैं Hmm. कि आप यहाँ क्यों आए हो? अगर वो जाग गए ना हमारे हस्बैंड तो आपको मार डालेंगे, और डर आ रहा है. उसका पाप हमें लगेगा. Hmm. तो शी इज लाइक गिल्ट ट्रिपिंग. Hmm. एंड सेकंड स्टैंजा में इफ यू सी, शी इज ट्राइंग टू नाउ व्हाट यू कैन कॉल एज सेल्फ डाउट कृष्णा, कि कहीं आप भूल तो नहीं गए अपना रास्ता, Hmm. या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपके दुश्मन ने आपको यहाँ छोड़ दिया है. और अगर ऐसा भी हुआ है तो शायद बहुत गलत चीज़ हुआ आपके साथ, क्योंकि
ये जो आपका समय वो खत्म हो गया, नो नाउ नाउ वो एक शी इज ट्राइंग टू इन्फ्लिक्ट फियर इन द माइंड, है ना. सही. But now Krishna answers. Now, because Krishna, being Krishna, okay, he straight away sees through their lies, and he has nothing to fear. तो सीधा बोल देते हैं, નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો કે મારા વેરીએ વળાવ્યો મથુરા નગરીમાં જુગતું રમતો નાગનું શીશ હું હાર્યો. So in a very sarcasm, like a sarcastic way वो बोल देते हैं, हे नागिन, मैं नहीं भूला अपना रास्ता, ना तो मेरे दुश्मन ने मुझे यहाँ छोड़ा है, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे. क्यों? क्योंकि मथुरा में मैंने एक शर्त लगाई थी अपने दोस्तों के साथ, और मैं वो शर्त हार गया हूँ, और शर्त में मैं कालिया नाग का सर हारा हूँ, तो वो लेने आया हूँ. Is straight on to the point. Now the Nagin, she senses this. Okay, now the tone suddenly changes. The tone says that Range rudo rupe puro disanto kolido kadamano તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા તેમાં તું અલખામણો. Which means ke, you are very beautiful. Like if you look at your color, it's so charm, it's very good looking, charming, you have that charming appearance. And how many आपके माता ने, आपकी मम्मी ने कितने ऐसे जन्म दिए बच्चे जिसमें से आप इतने अनफेवर्ड हो, अनलकी हो कि आप पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा. Again, look at that tone. That tone is way more cunning. कि क्यों आया है यहाँ पे, अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं कर रहा है. ओके, दैट फियर इज स्टिल बीन इंस्टिक्टेड इन, उनको डाला जा रहा है अभी भी. तो कृष्ण जी अगेन सेज इन अ वेरी लविंग वे, ही सेज दैट મારી માતાએ બેવ જન્મ્યા તેમાં હું નટવર નાનડો જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કાનુડો. इससे स्ट्रेट अवे कि भाई मेरी माता है, दो बच्चे दिए है ना, जन्म दिए है बेटे, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ, और तुम्हारे नाक को जगा वो कालिया नाग को, उसको बताओ कि मैं आया हूँ, कृष्ण कानोडो, कृष्ण आया है उसे लेने. तो नाउ लुक एट द टोन कार्तिक, यहाँ पे अभी चेंज हो रहा है. बिकॉज क्या हो रहा है ना, इट सीम्स कि जो वाइफ ऑफ कालिया नाग है, उन्होंने थोड़ा सा अभी डरना शुरू किया. अब वो एक अलग पैतरा यूज करते हैं. नाउ शी सेज, लाख सवानो मारो हार आपू, आपू हूँ तुझने दोरियो, એટલું મારા નાગથી છાનું આપું તુજને ચોરીઓ. She's trying to use greed. Now she's saying कि मैं अपने सवा लाख का हार है वो मैं तुझे देती हूँ. मैं सोने की जो चेन्स है वो मैं तुझे देती हूँ, और ये सब मैं छुप के दे रही हूँ, अपने नाथ को बता के नहीं, ताकि पता है ना, चले. तू ये सब लेके जा, राइट, चोरी करके मैं तुझे दे रही हूँ, प्लीज चले जा. So now Kana, he straight away confronts, okay, the Nagin. He says that Sukaru Nagan har taro, Sukaru taro duriyo, Sane kaje Nagan tare, Karvi gharma choriyo. Which means कि he is asking Nagan now कि क्या करूंगा मैं तेरे हार का, है ना, तेरे गोल्ड की चेन्स का, और ऐसा क्या हो गया है कि तुझे अभी छुप के से अपने घर में चोरी करनी पड़ रही है. Where is our valor that you had and that you had for your husband? He is now challenging straight away. Now at the end when Nagin understands के नहीं समझने वाले ये, तो वो अभी she loses all her hope and she goes now. And अभी देखो वो कैसे कहते हैं, चरण चांपी मूछ मरड़ी नागने नाग जगाड़ियो, उठो ने बलवंत कोई बारने बालक आया आवियो. विच मीन्स के वो मस्त ऐसे पैर दबा के मूछों को ऐसे ताव दी के नाग को नागिन ने जगा दिया. और द यूज ऑफ वर्ड्स, शी यूजेस उठो ने बलवंत, जागो जागो वो स्ट्रॉन्ग वन,
कोई तो बाहर है ना, आंगन में एक बच्चा आया है, ऐसे। तो शी इज ऑल्सो नाउ ट्राइंग टू एनफोर्स दैट नाग, यू गेट अप इन रेज नाउ, शो हिम व्हाट you are. And now he awakens. Peu Balia Pathe Varakia, Krishna Kali Naga Nathiyo, Sahasra Fun Fufuve, Jim Gagan Gaje Hathiyo. So this stanza actually, it narrates the battle in between both of them. So both the strong ones locked arms, and they are in a very very fierce fight. एंड इन दैट फियर्स फाइट कृष्ण जी ने अभी कालिया नाग को हरा दिया है, क्योंकि उसको बहुत मारा है। और सहस्त्र नाग जिसके लाइक आई मीन जो कालिया नाग जिसके बहुत सारे फण हैं, राइट, दी हुड्स, राइट, वो सारे के सारे हुड्स को वो एकदम फुफकार रहा है। एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक थंडरिंग, यस इट्स थंडरिंग, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश, आई मीन बादलों में बहुत सारे हाथी गरज रहे एक साथ, चिंखाड़ रहे एक साथ. He's like yelling. So it indicates that either he's struggling or he's in great pain. That's it. Now, after hearing and seeing all of this, what happens to the Nagin now? નાગણ સહુ વિલાપ કરે છે, નાગને બહુ દુઃખ આપશે, મથુરા નગરીમાં લઈ જાશે, પછી નાગનું શીશ કાપશે. So now Nagin understands, the wife of Kalia Nag understands that the husband is in grave danger, and she is now crying and wailing कि नाग को बहुत दुख देंगे, अब उसको बहुत मारेंगे, और फिर घसीट के उसको मथुरा नगरी में लेके जाके सबके सामने उसका सर काटेंगे. तो नाउ हर उसका जो फियर था एकदम शुरुआत में, इन द फर्स्ट स्टैंजास, नाउ इट हैज कम टू रियलिटी. तो नाउ दे आर ट्राइंग टू कन्विंस लॉर्ड कृष्णा कि भाई जाने दो. बेव कर जोड़ी विनवे, स्वामी मुको अमारा कंठ ने, અમે अपराधी कई न समझा, ने ओढ़ा भगवंत ने. विच मीन्स कि अब वो हाथ जोड़ के वहाँ पे क्षमा मांगते हैं, और वो कहते हैं कि स्वामी हमारे जो हस्बैंड है, कंठ ने विच मीन्स द हस्बैंड, उनको छोड़ो, और हम अपराधी थे, हमें पता नहीं था, नाउ वी रियलाइज, और हम ये भी रियलाइज करते हैं कि हम भगवान को पहचान भी नहीं पाए. एंड देन थाल भरी में नागर्ण सर्वे, मोती डे कृष्ण वधावियो, नरसिंहाना नाथ पासे थी, नागनी नाग छुड़ावियो. विच मीन्स कि यहाँ पे इट्स काइंड लाइक the wives of Kalia Nag, they yes, they actually are showering Krishna with moti, with pearls. Now over here, I don't take it very literally that they were pearls, because Krishna ji को मोतियों की क्या ही पड़ी थी. These pearls are more like uh, how do we put, पश्चाताप के आंसू, Okay. right? Basically, because they are as valuable as pearls. They are like tears of realization and accepting their own mistakes and repenting on it. And then Narsayana Nath Paseti, that is Narsi Mehta over here is actually adding himself up. कि the Lord of Narsi Mehta, कि नाथ से उन्होंने नाग को छुड़ा लिया. So this is how it, this is the entire poem. And I just read it, but अगर हम इसे अगर सुने, in tune, it's very beautiful. You want me to sing? I can sing the first few stanzas because आगे का possible नहीं होगा मेरे लिए. But हाँ, इसका ऐसे है. जड़ कमल छांडी जाने बाड़ा, स्वामी अमारो जाग से, जाग से तने मार से, मने बाढ़ हत्या लाग से, है जड़ कमल छांडी जाने बाड़ा.
કહે રે બાલક માર્ગ ભૂલ્યો, કે તારા વેરીએ વેળાવ્યો. નિશ્ચય તારો કાળજ ખૂટ્યો, અહીંયા તે સીધે આવ્યો. નથી નાગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, કે મારા વેળીએ વેળાવ્યો. મથુરા નગરીમાં જોગ તું રમતો, નાગનો શિશ હાર્યો. હે જળ કમળ છાંડી જાને બાળા. So this is how it is. एंड दिस ये जो है ना भजन, ये जनरली हम छोटे बच्चों को हमारे यहाँ ऐसे लोरी के जैसे सुनाते हैं. सो द रीजन वाई क्यों लोरी के जैसे एटलीस्ट मुझे सुनाया गया, मेरे बच्चों को सुनाया गया, इसके पीछे का रीजन ये है कि यू नो इफ वी टेक्निकली लुक एट दिस एंटायर भजन, दिस भजन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस कि नो मैटर हाउ अंडरडॉग यू आर, no matter how small you are, if you are right, if you are righteous, है ना, एंड जब भी अगर कुछ गलत के सामने अगर आप खड़े रहोगे तो आपको ऐसे ही बहकाया जाएगा जैसे शुरुआत में नागिन ने, यू नो, दे ट्राई टू डू विद कृष्णा. बट कृष्णा, यू नो, you have to see right through it and face it straight on, because at the end it will then fall at your feet. So that is it.